آج کے لیکچر میں ہم سرچ اپلیکیشنز کی بات کریں گے. خاص طور پہ تھوڑا سا دیکھیں گے ملٹیپل انڈیکسز کی مدد سے ہم فیلڈ سرچ سسٹم کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں. پھر سرچ سسٹم کمپوننٹس کو ریوزٹ کریں گے اور پھر انہیں کمپوننٹس کی مدد سے ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے کہ جی ایڈ ہاک ریٹریول کیا ہوتی ہے, فلٹرنگ کیا ہوتی ہے, اور پھر جو آج کل فلٹرنگ کی مدد سے یوزر کی پروفائل وغیرہ کر کے بہت ساری اس کی اپلیکیشنز ہیں, آپ کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے سسٹمز میں, اور پھر ان کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تاکہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ کریٹ. یہ اوور آل جی ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ ڈاکومنٹس کی بات سے ہم نے انفارمیشن ریٹریول شروع کیا تھا. یہاں پہ پھر ہم نے کہا انفارمیشن آئٹم ہے اور ریپوزیٹری ہوتی ہے, انڈیکس بنایا جاتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ یوزر کی طرف سے کویری ہے اینڈ کویری رزلٹ ہے. بنیادی طور پہ آبجیکٹو یہی ہوتا ہے کہ نارملی جو یوزر کی انفارمیشن نیڈز ہیں خاص طور پہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے ان کو فلفل کریں, کیونکہ اپنی وہ انفارمیشن نیڈ ہے کویری کی مدد سے دیتا ہے. پھر وہ ایک ایٹریٹو پروسیس ہے, یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سرچ کے جو کمپوننٹس ہیں یہ دیکھیں گے ہم نے کہ انفارمیشن آبجیکٹ سے یہاں پہ شروع کرتے ہیں ہم یہاں پہ چیزیں, اور اسی کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن آبجیکٹس ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈپینڈنگ اپون کہ اسٹرکچرڈ ہے انفارمیشن یا انسٹرکچرڈ ہے, فل ٹیکسٹ کرنی ہے آپ نے صاحب کچھ نا, تو آپ انڈیکسنگ کے لیے ڈیٹا سلیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کی پارسنگ وغیرہ ٹوکنائزیشن کر کے ہم پھر بڑی آسانی کے ساتھ انڈیکس کریٹ کر لیتے ہیں. اب یہ ایک بیس ہوتی ہے بنیادی طور پہ کہ جی ہم انڈیکس پہ ہی سارا پروسیسنگ کرتے ہیں, اور ادھر سے پھر جو یوزر انفارمیشن نیڈ ہے وہ کویری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, پھر اس کو بھی پروسیس کیا جاتا ہے. بعض دفعہ یوزر کویریز کو نیچرل لینگویج میں کرتے ہیں, پھر بہت ساری چیز آرٹیکلز ہے وہ ریموو کر دیے جاتے ہیں, پھر کی ٹرمز ہی رکھی جاتی ہیں اور ان کو پھر نارملی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ جو انفارمیشن نیڈ ہے اس کا لاجیکل ویو پرووائڈ کرتی ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ وہ میچنگ کرتے ہیں سرچ فنکشن یہاں پہ انڈیکس میں, پھر اس کے بعد وہ اس کی رینکنگ کی جاتی ہے نارملی کہ جی موسٹ ایلیمنٹ ٹاپ پہ, اور اس کے بعد وہ ریزلٹس پریزنٹ کیے جاتے ہیں اور یوزر پھر وہ نارملی کمپیئر بھی کر لیتا ہے کہ انفارمیشن نیڈ کو ایٹریٹو سرکل کے پرسپیکٹو میں نا. تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس بنیادی طور پہ یہ ایک انڈیکس ہوتا ہے, یہ سرچنگ کہہ سکتے ہیں, ریزلٹ پریزنٹیشن ہے, یہ انفارمیشن نیڈ ہے کویری پروسیسنگ کے پرسپیکٹو میں نا. اور اسی طرح دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ہم نے جو بات کی تھی کہ جی جب ہم ملٹیپل انڈیکسز کریٹ کرتے ہیں تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم وہ جو ان پٹ بھی ہے جو کویری ہے وہ ہر فیلڈ کے لیے الگ الگ لے لیں, تاکہ ڈفرینٹ اپلیکیشن پہ خاص طور پہ جہاں پہ اسٹرکچرڈ ہیں یا ای کامرس کی اپلیکیشن ہیں وہاں پہ ہم ملٹیپل انڈیکسز کریٹ کر کے ڈفرینٹ فیلڈس کے لیے ان پٹ لے کے اور اس کو ڈائریکٹلی پروسیس کر سکتے ہیں. ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی بات کی تھی, آج بھی تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے سسٹمز میں یہاں پہ انفارمیشن اسٹرکچرڈ ہے, آبجیکٹس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے, پروڈکٹس کے بارے میں ہوتی ہے, بکس کے حوالے سے دیکھیں, موویز کے حوالے سے, سانگس کے, تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ کریٹ کر سکتے ہیں ملٹیپل انڈیکسز, اور پھر ان پہ جو ہے نا سارے کی ٹرمز آف فیلڈ اس کو بنیادی طور پہ آپ بہتر انٹرفیس کے ذریعے فیلڈس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اس کو فیلڈ سرچ کہا جاتا ہے. بہت ساری آج کل خاص طور پہ ڈیجیٹل لائبریریز وغیرہ میں وہ نارملی فیلڈ سرچ ہی کی جاتی ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں ایک تو بیسک اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ملٹیپل انڈیکسز ہیں, ہر فیلڈ کے لیے ایک انڈیکس کریٹ کر لیں گے, اور پھر جو کویری بھی ہے وہ ہر فیلڈ کے لیے لیبل لگے ہوتے ہیں فیلڈس پہ, وہ یوزر کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان پٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں, اپنی جو انفارمیشن نیڈ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں بعض دفعہ ایکسپریسلی یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ڈفرینٹ فیلڈ کے دوران آپ نے جو بولین آپریٹرز ہیں وہ اینڈ لگائے ہوئے, ڈیفالٹ اینڈ ہے, یور ہے, اور یوزر پھر بڑی آسانی کے ساتھ اپنی انفارمیشن نیڈ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ مثال کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے کوئی جرنلز کا ڈیٹا ہے تو اس پہ آپ کے پاس وہ آرٹیکل ٹائٹل دیا ہوا ہے, دین آپ اس میں فیلڈ دی ہوئی ہے, اور آتھر کے فیلڈ میں آتھر کا آ جائے گا. پھر جرنل کے سلسلے میں اسپیسیفک جرنل ہے, یہاں پہ بعض دفعہ انہوں نے کامبو لسٹ بھی دی ہوتی ہے. ایبسٹریکٹ میں بھی کچھ چیزیں سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ 4 فیلڈ ہیں, اس میں سرچ کر کے اور جو اس کی پروسیسنگ ہے وہ جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ بولین ماڈل میں ہر فیلڈ کے لیے علیحدہ سے وہ کچھ میں ایک کی ٹرمز ہو سکتی ہیں, ملٹیپل کی ٹرمز ہے, اس پہ پھر وہ اینڈ آپریٹرز یا اور آپریٹرز لگائے جا سکتے ہیں. وہ اب دیکھ لیتے ہیں اکارڈنگلی کیسی چیزیں کی جاتی ہیں. تو اب بنیادی طور پر ہر فیلڈ کو لے کے جس طرح ہم نے ہر کویری ٹرم کے لیے انڈیکس کو سرچ کرتے ہیں, پھر ان پہ بولین آپریٹرز لگاتے ہیں اوور آل کویری کے ریزلٹس کریٹ کرنے کے لیے, یہاں پہ بھی ایک ہر فیلڈ کا علیحدہ سے انڈیکس ہوگا. آپ نے ملٹیپل انڈیکسز میں
और जर्नल के इंडेक्स में बुनियादी तौर पे हम वो जो क्वेरी टर्म्स दी हुई हैं उसको करके प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे फिर ये प्रोसेस यही होता है कि जी है कि टर्म्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो वो रिस्पेक्टिव इंडेक्स में सर्च करते हैं और उसको नॉर्मली हिट्स को प्रोसेस कर लेते हैं। फिर बाकी सारों को जो करते हैं ऑल फीड्स की नॉर्मली जितनी भी हिस्से पोस्टिंग लिस्ट को प्रोसेस करके आप रिजल्ट निकाल लेते हैं। ये बड़ा आसानी से किया जा सकता है और बाज़ दफ़ा डेटा होता है वेबसाइट में स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन सर्च बुनियादी तौर पे प्रोवाइड नहीं की होती क्योंकि सर्च का ऑप्शन दिया होता है। तो इसमें बड़ी आसानी के साथ आप अगर हम इसी को देखते हैं कि जी अगर ई कॉमर्स में प्रोडक्ट टाइप है, अगर गारमेंट्स की बात करते हैं कि अगर नॉर्मली जनीज वगैरह दिया हुआ इसका कि जी आपने लेडीज़ के गारमेंट्स हैं जिसके ये वो सारी स्पेसिफिकेशन एक दो और फीड्स भी बना सकते हैं, फिर कलर है, साइज़ है, सारा कुछ ना, तो पे सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ। इसी तरह वहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा जी कि आप रिस्पेक्टिव फीड्स को करते हुए यही है था कि जी बेसिक तो वही है कि इंडेक्सिंग अगर आपने सही तरह से की हुई है तो मल्टीपल इंडेक्सेस क्रिएट करते हुए ज़ाहिर है कि वही प्रोसेस करना आपने डिफरेंट फीड्स में और फिर मैच करनी है रिस्पेक्टिव फीड्स को और फिर उनको ओवरऑल जो प्रोसेस करना है डिपेंडिंग अपॉन के लिए आप उसको एंड ऑपरेटर्स लगा रहे हैं या और ऑपरेटर्स लगा रहे हैं या एंड नॉट लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आसानी के साथ आप फील्ड सर्च में कर सकते हैं। बने सिस्टम्स पे ही एक सर्च ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जी इसकी एप्लीकेशन के हवाले से कि ये फिल्टरिंग और उसमें नॉर्मली फ़र्क क्या है। ये बुनियादी तौर पे कंपोनेंट्स हैं, यूज़र की इंफॉर्मेशन नीड होती है, सर्च फंक्शन है जिस तरह सारी एक्टिविटीज सर्चिंग की और इंडेक्स होता है इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता हूँ। अभी वो बातें कर चुके हम कि स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है ना। बाद दफ़ा इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स रखते हैं आप सिर्फ ना, जिस तरह अभी बात की है कि जी अगर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो ई कॉमर्स में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, मल्टीपल इंडेक्सेस क्रिएट करें, ये सारा कुछ नहीं। तो नॉर्मली ये जो रिट्रीवल सिस्टम्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है जी। अब ये होता यही है, ये बेसिक तो यही चीज़ें ना, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जी कौन सी चीज़ें फिक्स हैं कौन सी। ये दो हैं जी, एडहॉक रिट्रीवल है, ये नॉर्मल हम सर्च सिस्टम्स हैं वो बुनियादी तौर पे उनको एडहॉक रिट्रीवल ही कहा जाता है। दूसरा होता है फिक्सिंग। अब ये होता है कि अगर आपको याद होगा हमने शुरू में भी कहा था कि खास तौर पे ये जो डॉक्यूमेंट बेस्ड सर्च सिस्टम है रिट्रीवल सिस्टम है, तो उसमें इंडेक्स है एक ही दफ़ा बना के सारा कुछ रख लिया जाता है जितनी भी कलेक्शन होती हैं उसमें ना। तो ये बुनियादी तौर पे स्टैटिक होता है और ये डिफरेंट यूज़र्स की जो क्वेरीज हैं वो डायनामिक होती है, हर यूज़र की इंफॉर्मेशन नीड फ़र्क होती है। तो जब हम कहते हैं कि जी इंडेक्स तो स्टैटिक है, मोस्टली स्टैटिक है, और क्वेरीज डायनामिक ना, हर मुख्तलिफ यूज़र्स की मुख्तलिफ क्वेरीज आती थी, तो इसको नॉर्मली एडहॉक रिट्रीवल कहा जाता है। फिल्टरिंग जो है ना जी वो ये होता है कि जी जब आपका इंडेक्स डायनामिक है और क्वेरी स्टैटिक है, तो यहाँ पे ये जिस तरह न्यूज़ वगैरह के बारे में सारा कुछ ना, तो उसमें ये है कि जी वो सम और मोर और लेस लोगों की जो ज़रूरियात होती है इन्फॉर्मेशन की, कुछ लोग स्पोर्ट्स की न्यूज़ में इंटरेस्टेड होते हैं ये चीज़ों, उस पर फिर वो आप चीज़ों को फिल्टर करते हैं। और नॉर्मली ये फिल्टरिंग बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशन है, रिकमेंडर सिस्टम हो गए, RSS अभी देखेंगे आगे ना, तो उसमें ये होता है कि यूज़र की जो प्रोफाइलिंग, उसको प्रोफाइलिंग कहते हैं, यूज़र की जो क्वेरी है रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप रख लेते हैं एक ही दफ़ा, तो मोरलेस, और फिर इसको नॉर्मली आप जो नॉर्मली आपका डेटा है बुनियादी तौर पे जिस पे नॉर्मली आपने सर्च ऑपरेशन लगाने, वो बुनियादी तौर पे डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है, तो वो फिर आप लोगों को नॉर्मली पुश अप्रोच के ज़रिए आप इंफॉर्मेशन उनको लेटेस्ट दे देते हैं ना। तो ये थोड़ा सा आपको हम इसकी कंपोनेंट्स की मदद से भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। अभी जो हमने कंपोनेंट्स देखे थे तो उसके पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये जी एडहॉक रिट्रीवल में ये चीज़ें हमारे पास बनी हुई हैं, इस पे हम ऑपरेशंस करते हैं। वो जो ये सारा प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन एक यूज़र आया उसकी इन्फॉर्मेशन नीड है, क्वेरी उसने ट्रांसलेट किया और उसका सर्चिंग हुई, तो ये प्रोसेस चलता है इस तरह। ये वो फिक्स ही रहता है, ठीक है नहीं, क्योंकि वही कलेक्शन पे मुख्तलिफ यूज़र आते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन नीड देते हैं, ज़ाहिर ट्रांसलेट होती है इन्फॉर्मेशन नीड, क्वेरी टर्म्स में लॉजिकल व्यू प्रोवाइड किया जाता है, मैचिंग, रैंकिंग एंड देन प्रेजेंटेशन, सारा कुछ ना। वेयर एज अब देखते हैं कि तो तीन ही कंपोनेंट्स हैं, क्वेरी है, प्रोसेसिंग है जिसको हम सर्चिंग कहते हैं, और ये बुनियादी तौर पे इंडेक्स है, ये इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट है। ये एडहॉक रिट्रीवल में ये स्टैटिक था, यहाँ पे ये डायनेमिक। अब हमने कहा कि जी इन केस ऑफ फिल्टरिंग ये आपका नॉर्मली यूज़र की प्रोफाइलिंग है, लेके सेट ऑफ यूज़र्स की सारी कस्टमर्स हैं ये जो भी हैं उनकी आपने रख लिया है, फिर आप ये कोई नई इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स हैं
अपडेट है, फिर आप सर्च फंक्शन लगाते हैं तो उसको हम देख सकते हैं कि जी उसके परफॉर्मेंस जो है एडहॉक फिल्टरिंग ये नॉर्मली फिक्स है। ये इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स आए हैं, आप उसका फिर ऑन द फ्लाई करेंगे, क्रिएट करेंगे, जाहिर है फिर सारों को ही किया जाएगा ना कि जितनी भी ये फिक्स हैं, तो वो थोड़ा सा फ़र्क है, हाउ हैती होती हुई मैचिंग है सारा कुछ ही ना। अब यहाँ पे वो सर्चिंग शुरू की है जी, रैंकिंग और वो सारा उसी का सिलसिला। ये बुनियादी तौर पे ये है कि आपको फ़र्क पता होना चाहिए। आपने इंडेक्स क्रिएट कर लिया है तो आप जो नॉर्मली है कि जी एक दफ़ा आप मल्टीपल फील्ड सर्च करें, फिर उसके बाद है यूज़र्स का प्रोफाइल रख के और बड़ी आसानी के साथ उनको अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह कोई नई बुक्स आती है लाइब्रेरी में, अगर आपने लाइब्रेरी बुक्स वगैरह की बात करते हैं, जर्नल्स हैं, तो जो भी आता है तो यूज़र्स को फिर वो जो है ना वही उनको वो पुल नहीं करनी पड़ती इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली पुश अप्रोच है जी कि यूज़र्स की जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली जब ये इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बाय फिल्टरिंग दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ना, क्योंकि ये यूज़र्स के बारे में नॉर्मली इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए आजकल एडवर्टाइजमेंट में, ई कॉमर्स में बड़ा यूज़ किया जाता है इसको, तो आप भी अपने सिस्टम्स में बड़ी आसानी के साथ इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अगर एप्लीकेशन के परस्पेक्टिव में देखते हैं तो हमारे पास ये फिल्टरिंग बेस ज़्यादा है जी। रिकमेंडर सिस्टम्स हैं जी, रिकमेंडेड में यही है कि ये नॉर्मली मिलती जुलती चीज़ें वो रिकमेंड करते हैं, नॉर्मली पता लगा लेते हैं कि जी लोगों ने क्या की है प्रोसेसिंग। तो बाज़ दफ़ा ये हो कि आप स्टैटिक लोगों से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, लोग बता देते हैं कि जी मुझे इस बारे में कोई भी अपडेट्स आए तो रिकमेंड उसमें। बाज़ दफ़ा ये रिकमेंडर सिस्टम थोड़े से फ़र्क होते हैं कि जी ऑन द बेसिस ऑफ द लाइकलीहुड ना, कि जी अगर आपने ये चीज़ें ख़रीदी हैं तो वो फिर जो सिस्टम रिकमेंड करते हैं, जिस तरह अमेज़ॉन में है, ये ई कॉमर्स में रिकमेंड कर दी जाती हैं सारा कुछ नई चीज़ें ना, तो वो वही होती है कि जी उसका फिर ऑन दी फ्लाई जो यूज़र का जो है ना प्रोफाइल क्रिएट की बाद वो रख लेते हैं आपका प्रोफाइल क्रिएट करके कि आप कौन कौन सी चीज़ों को सर्च करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, यूट्यूब हो गया, जितने भी सोशल मीडिया पे हैं, ई कॉमर्स में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें अमेज़ॉन है, तो वो आपको बुनियादी तौर पे चीज़ें रिकमेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट थिंग्स जो है ना, आप कौन सी चीज़ें तलाश कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, सारा कुछ ना। इसी तरह ये आ जाती है RSS है जी, वो बेसिकली न्यूज़ फीड वगैरह के लिए रियली सिंपल सिंडिकेशन है। तो आप अपना प्रोफाइल दे देते हैं एक्सप्लिसिटली बाद दफ़ा। और इसी तरह न्यूज़ फिल्टरिंग वगैरह के लिए भी ये है कि जी आप अगर आप चाहते हैं कि जी न्यूज़ फिल्टर होके आपके पास आए, कि रादर देन आप, ये थोड़ा सा वही जो पहले बात की है, पुश अप्रोच है कि आपको सारे न्यूज़ पेपर्स को ब्राउज़ नहीं करना पड़ता। अगर आप सिर्फ चंद न्यूज़ टाइप में इंटरेस्टेड हैं तो न्यूज़ फिल्टर करके आपको मिल जाएगी। ज़ाहिर है कि वो आपकी प्रोफाइल बेस्ड हो गया कि आपको किस किस्म की न्यूज़ है सबसे पहले देखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे ना, सारा कुछ आ जाएगा। इसी तरह आप अलर्ट्स वगैरह भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आप अपनी ई कॉमर्स साइट्स में बाज़ दफ़ा ये है कि अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट आता है तो अगर आप यूज़र के पास है, जिस तरह अभी मैंने गारमेंट्स की बात की थी, उस सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ आपने, तो उसको आप नॉर्मली नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई हैं तो आप उन्हीं लोगों को जिनका प्रोफाइल आपके पास है, जो उन्होंने स्पेसिफाई किया कि उनको नॉर्मली कि ये लेडीज़ गारमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो लेडीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं आप ना। फिर बच्चों के हवाले से इंफॉर्मेशन है। इसी तरह जिस तरह अभी बात की थी बुक्स के हवाले से कि न्यू अराइवल्स हैं, वो इन्फॉर्म किया जा सकता है। अगर मूवीज़ के हवाले, तो इसको भी आजकल एडवर्टाइजमेंट के हवाले से भी किया जाता है, स्पेसिफिक प्रमोशन फॉर स्पेसिफिक यूज़र्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफाइल। तो ये फिल्टरिंग की वजह से, क्योंकि ये जो आपका इंडेक्स है, प्रोडक्ट्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन यूज़र की जो ज़रूरियात हैं वो ऑलमोस्ट मोर और लेस फिक्स होती हैं, लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम वो अपना प्रोफाइल भी चेंज कर लेते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसकी बुनियाद पे आप जो है ना जी अपने छोटे छोटे सिस्टम्स में छोटी छोटी एप्लीकेशन बना सकते हैं। बेसिक वही है कि आपको जी सिर्फ एक इंडेक्स फ्राहम करना, फिर आप देखते हैं कि जी आपने इसको एडहॉक रिट्रीवल सिस्टम करना है, कि जबकि आपकी जो रेपोजिटरी है, इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स हैं, वो फिक्स हैं, तो आपको एडहॉक रिट्रीवल होगा। लग पे आपके जो चेंजेस हैं उसमें प्रोडक्ट आइटम्स हैं फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, तो फिर लोगों को आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। उनका जो है ना वो है वही मैचिंग है जी, सारा कुछ ना, एक चीज़ को फिक्स करके दूसरे पे नॉर्मली मैप करते हैं, चीज़ों को मैचिंग की जा सकती है ना। तो उम्मीद है कि आप ये इंडेक्सिंग की बेसिक्स को ये इसी लेक्चर सीरीज़ में जो हमने 5-6 किए हैं सारा कुछ ना, ये था कि आपको बड़ी आसानी के साथ आप डिफरेंट एप्लीकेशंस मॉडिफाई। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आपकी कौन सी चीज़ फिक्स है, कौन सी आपने डायनामिक रखनी है,
تو آپ لوگوں کو صرف وہی ان کی ضروریات کے مطابق انفارمیشن پش کر سکتے ہیں. بمبار نہیں کریں گے آپ انفارمیشن کو کہ آپ خاص لوگوں کو جو ان کو ریکوائرڈ ہے. اور تب آپ یہ جو ہے نا پروموشنز کے طور پہ بھی اسپیسیفکلی، کیونکہ یہ نہیں کہ جی ساری چیزیں ساروں کو بھجوا دیں کہ جی یہ نئی انفارمیشن اویلیبل ہے جبکہ وہ ان میں انٹرسٹڈ ہی نہ ہو. تو اس کے لیے پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشن کو فلٹر کر کے پرووائڈ کر سکیں، اور یہ سرچ سسٹم کے ذریعے بڑی آسانی سے ساتھ ممکن ہے. ای کامرس میں بھی ہم نے بات کر چکے ہیں، جس طرح نئے پروڈکٹس آئے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر فیملی، ہر لوگ ہیں آپ کے کسٹمرز ہیں، ریگولر کسٹمرز ہیں، وہ جو نئی پروڈکٹس ہیں جو ان کی نارملی ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. پھر آئٹمز آتی ہیں نئی نا، پھر پروموشنز کے لیے بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ نا. تو آپ یہ کوشش کریں چھوٹے سسٹمز بنا کے، پھر آپ جو ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں ان پہ بھی نارملی آسانی کے ساتھ آپ بیک اینڈ پہ رہتے ہوئے یہ سارا کچھ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں یوزرس کی اسمال ای کامرس سائٹس پہ، اور یہ سارے پروڈکٹس اور پروموشن کے پرسپیکٹو میں. آج کو وہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح آپ نے دیکھا SMS، ہر ایک کو SMS آنا شروع ہو جاتے ہیں نا. نہیں، وہ یوزرس کی اسپیسیفک نیڈ ہے، اسی کے حساب سے اس کو نارملی انفارمیشن ملنی چاہیے سارا کچھ نا. تو تبھی وہ جو ہے وہ انٹرسٹ لیں گے. ادروائز تو لاٹ آف انفارمیشن از بین جسٹ ویسٹڈ.